کمالی میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ اصول یا پرنسپلز کی بات کی تھی، میں ان کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے ہمارا اس وقت 9.5% جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ خیرات سے، فلانتھرپی سے جو اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہسپتال ہیں، وہ تو چل سکتے ہیں، ملک صرف ٹیکس سے چل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کو بتدریج 9.5 سے اگلے 3 سال میں اس کو 13.5% پہ یا 13% کے قریب اس کو لے جانا پڑے گا۔ اچھا، اب اس کے ڈفرینٹ میجرز ہیں، ڈفرینٹ اس کے طریقے ہیں کہ اب اس کو وہاں لے کر کیسے جائیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو ریونیو میجرز اناؤنس کیے گئے اس میں یہ تھا کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی آن آل دوز سیکٹرز جو پہلے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں نہیں تھے ان کو اس مد میں لایا جائے۔ دوسرا یہ تھا، کیونکہ آپ خود اس چیزوں پہ لکھ چکے ہیں آفٹر سینگ آر اکنامک سروے آف لاسٹ ایئر کہ 3.9 ٹریلین کی ٹیکس ایگزیمپشن یا ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہیں، ہم ان کو ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں بٹ وہ ایگزیمپشنز ہیں، تو بتدریج ہم نے ان ایگزیمپشنز کو ریڈیوس کرنا ہے۔ اس میں بھی ہم نے کچھ ایریاز کو جو ہے وہ اس کو رنگ فینس کیا ہے، اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں ہیلتھ ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اس کے علاوہ اب 2 چیزیں جس پہ غور و خوض نہیں کیا جا رہا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ میری اس میں کوئی اس میں کمی پیشی ہو ان مائی کمیونیکیشن اور دا کمیونیکیشن فرام دا فائنانس منسٹری۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھا رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے ہیں، یا انہی پہ واپس جا کے ٹیکس اور ڈائل کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم باقی سیکٹرز کو نیٹ میں لا رہے ہیں۔ جیسے میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ 31,000-32,000 ریٹیلرز اس وقت رجسٹر ہو چکے ہیں، اور جولائی سے ان پہ ٹیکس کا اطلاق ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا طبقہ یا سیگمنٹ جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کی حد میں ہم نہ لے کر آئیں، بیکاز اگر ہم نہ لے کر آئے پھر جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ سیلری کلاس کے ساتھ کیا ہو گیا، مینوفیکچرنگ میں کیا ہو گیا، تو یہ وہی بات آگے چلتی رہے گی۔ تو اس لیے دیر آر ادر سیکٹرز وچ آر گوئنگ ٹو بی براٹ انٹو دا نیٹ، اور انشاءاللہ جولائی سے ان کا اطلاق ہوگا۔ دا تھرڈ تھنگ وچ پروبلی گاٹ لاسٹ ان ٹرانسلیشن، کہ جو ہم انفورسمنٹ اور کمپلائنس کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو لیکیجز ہیں سسٹم میں، جو آلریڈی جو قوانین ہیں آلریڈی موجود ہیں لیکن ہم ان کو انفورس نہیں کر پا رہے، اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ کسی اور کا قصور ہے، وہ ہماری اپنی ٹیکس اتھارٹی ہیز ٹو اسٹیپ اپ، اور اس میں سیلز ٹیکس ہے، ان کا فراڈ ہے، اور جو دونوں چیزیں جو ہیں یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تھا، یہ ٹوبیکو سے شروع ہونا تھا، پھر شوگر میں جانا تھا، پھر فرٹیلائزر میں جانا تھا، پھر سیمنٹ میں جانا تھا، اور پھر ادر سیکٹرز میں جانا تھا۔ اس میں سسٹم اور جو فنکشنالٹی ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایشو ہو، بٹ امپلیمنٹیشن وہ سرٹنلی لیکس، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں ریونیو اور آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ سکا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہے، نہ صرف ادراک ہے، ہم نے اب 4 ہفتے سے میکنزی از آلریڈی ناؤ ایٹ ورک ان FBR، اور اس کا مقصد ہے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن۔ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو آٹومیشن ہے اس سے ہیومن انٹریکشن کم ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو جائے گی، وہ کم ہوگی۔ جب کم ہوگی اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی، اس میں کرپشن کم ہوگی، اس میں یہ جو کلائنٹ ایکسپیرینس ہے، کیوں نہیں لوگ آنا چاہتے FBR کے نیٹ میں، کیوں نہیں لوگ آنا چاہتے ٹیکس نیٹ میں؟ وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ جی یہ جب ہم یہ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہمیں ہراسمنٹ ہوتی ہے، ہمیں جو فریولس نوٹسز آتے ہیں، تو یہ جو لوگ مجھے آ کے یہ باتیں بتاتے ہیں وہ ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ میں 6 سال خود پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کر آیا ہوں۔ سو کوائٹ فرینکلی آئی بین آن دا ریسیونگ اینڈ، سو مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ جی ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے، وہ بھی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے
हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा और ट्रांजिशन करनी पड़ेगी। सो ये मैं अभी बात कर चुका हूँ कि एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स, उसमें जो एडिशनल सेक्टर्स विच आर गोइंग टू कम इन, और लास्ट चीज़ ये है कि जो कंप्लायंस है वो ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन से होगी, जो इस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। सेल्स टैक्स की जो ऑटोमेशन है वो हमारी बहुत बड़ी एक जो है वो तरजीह है, और उसमें मैं जो अली हमारे हैं, अली परवेज़ साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो हर हफ्ते इसको देख रहे हैं, मैं इसको हर हफ्ते देख रहा हूँ, और हर 2 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि हम ऑटोमेशन की तरफ कैसे जा रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट थिंग। उसके अलावा देखें, जो बात हो रही है कि आप एक्सपेंडिचर्स अपने क्यों नहीं कम कर रहे। रेवेन्यू तो आप बढ़ा रहे हैं, मेजर्स भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे। ये भी बात दुरुस्त है, ये भी बात दुरुस्त है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात है उसमें 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें देखना है और इसको हमने आगे लेकर जाना है। पहली बात तो ये है, जो सबसे आसान चीज़ है, कि जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुके हैं, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट को हमें ये मिनिस्ट्रीज़ बंद करनी चाहिए, उन डिपार्टमेंट्स को हमें ज़िम कर देना चाहिए ताकि वो खर्चा कम हो। उसमें अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं वो कि PWD या पाक PWD उसको उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अब 2 उसमें भी सूरत हाल है जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। PWD को फ़र्ज़ करें हमने बंद कर दिया और वो बंद होगा, उससे डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? 3.5 बिलियन 4 बिलियन रुपए की है। नाउ these are big numbers, but in the larger scheme of things जो हमने बजट पेश किया है उसमें तो ये बहुत कम रकम है। ये बचा नहीं है, बचा वो है कि जो प्रोजेक्ट्स ये हैंडल करते थे या करते हैं, उसमें से कितना जो है वो खर्च होता है, कितना करप्शन की मद में जाता है। दैट इज़ द रियल लॉस टू द एक्सचेकर, दैट इज़ द रियल लॉस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि जो हम ये एलोकेट करते हैं हम रकम, उसमें से कितनी रकम जो है वो खुर्द बुर्द हो जाती है। दैट इज़ द रियल कॉस्ट। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो एक हाई मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है उसमें हम बहुत काम कर भी चुके हैं, लेकिन मेरी चेयरमैनशिप में उन्होंने ये कमेटी बनाई है। हम इंशाल्लाह अगले महीने 1.5 महीने में उनको अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो उनके सामने पेश करेंगे कि किन मिनिस्ट्रीज़ को हमने जो है बंद करना है, किन डिपार्टमेंट्स को हमने जिम करना है। एज आई सेड, ही डिडंट इवन वांट टू वेट फॉर दैट रिकमेंडेशन। उन्होंने PW को तो पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें नज़र आ रहा है कि करप्शन उस लेवल पे पहुँच चुकी है जिसकी वजह से अवाम का भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये कहना कि जी आपने एक्सपेंडिचर्स पे गौर नहीं किया, हम एक्सपेंडिचर पे ना सिर्फ गौर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स को हम इंशाल्लाह कम करेंगे एट द फेडरल लेवल, और बड़े मुनासिब इक़दाम आपको अगले महीने 1.5 महीने में पता चलेंगे। बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये जो बात हो रही है कि जी आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते। अच्छा, दूसरा खर्चा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल थिंक कि जी लोगों को निकालना, लोगों का ये जो डिपार्टमेंट्स बंद करना, ये इससे खर्चे कम होंगे। दूसरा जो बड़ा हमारा लिए मसला है, इसका खसारा कौन बर्दाश्त कर रहा है? इसका खसारा आप सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि जी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चलने दिया जाए। अभी इस वक्त 2 एसेट्स हैं विच आर इन प्ले एट द मोमेंट। PIA 622 बिलियन रुपए की लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हुई है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका कौन कसूरदार है? ये 622 बिलियन, ये जो लोग कहते हैं कि आपने तनख्वाहदार तबकों के और मैन्युफैक्चरिंग को और इनको आपने रिलीफ नहीं दिया, कहाँ से रिलीफ दें हम? ये 650 बिलियन अगर बचते, आज से आगे 10 साल पहले, 15 साल पहले PIA प्राइवेटाइज हो चुका होता। जो इस वक्त हमने लिया है अपने खसारे में लिया है ना, क्योंकि 10 साल का ये रिस्ट्रक्चर हुआ है, ये सब आप खमियाजा उसका भुगत रहे हैं। हुकूमत तो भुगत रही है, हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं। इसी तरह जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, उसमें कराची की एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जो है वो
इंशाल्लाह अब आप अच्छी खबर सुनेंगे, जुलाई अगस्त में हो जाएगी। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि कराची और लाहौर के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें। और मैं आपको बताता हूं कि आई एम द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs। काफ़ी लोग मुझे आगे कहते हैं ये स्ट्रेटेजिक है, ये एसेंशियल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दैट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दैट। ये अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। और मैं इस वक्त हुकूमत का एक अहम नुमाइंदा आप समझ लीजिए, उसके मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए और इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा और हम इसको कम करने जा रहे हैं। तो इसलिए, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें लीड ले रहे हैं। और मैं सिर्फ ये आपके गोश गुजार करना चाहता था बजट के हवाले से। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात होंगे मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अब मैं आगे बात करना चाहता हूँ ज़राअत के मामले में, क्योंकि जज वाला कमालिया में बैठे हुए ज़राअत के बारे में बात ना करना तो बहुत नामुनासिब होगा। देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि दो शोबे हैं, दो सेक्टर्स हैं, ज़राअत और IT। इसका कोई ताल्लुक नहीं है IMF के साथ या किसी और चीज़ के साथ। नाज़रीन, कमालिया में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, टैक्स से ही सारा निज़ाम चलता है। बजट तकरीर में कुछ उसूल और ज़वाबित की बात की। GDP का इन्हिसार टैक्स नेट पर है। खैरात से इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। FBR में बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। अखराजात में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो कमालिया में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, टैक्स से ही सारा निज़ाम चलता है। बजट तकरीर में कुछ उसूल और ज़वाबित की बात की। GDP का इन्हिसार टैक्स नेट पर है। खैरात से इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। FBR में बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं और अखराजात में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कमालिया से ये बराह रास्त मनासिर, जहाँ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, टैक्स से ही सारा निज़ाम चलता है। बजट तकरीर में कुछ उसूल और ज़वाबित की बात की। GDP का इन्हिसार टैक्स नेट पर है। खैरात से इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। FBR में बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। वी आर अ रूरल इकॉनमी, ये हाथ तो करते हैं 22%, ये एक्चुअली 40% के करीब इसका अमल दखल है हमारी इकॉनमी में। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटायर वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन, तो इसका जो आगे जोड़ना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी की वजह से, और दूसरा IT सेक्टर है, वो भी हमारे कंट्रोल में है। 3rd लार्जेस्ट फ्रीलांसर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, उनको सिर्फ हमने बच्चे और बच्चियों को, हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे, इतनी नौकरी। ये बच्चे और बच्चियां अपने घरों में बैठ के जो काम कर रहे हैं, ये कमाल का काम कर रहे हैं। इसी वजह से $3.5 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है इस साल। जो हम बात करते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स, उनके साथ क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स का क्या नहीं होगा, ये बच्चे और बच्चियां आपको ये पैसा कमा के दे रहे हैं अपने घरों में बैठ के। $3.5 billion is no reason why it can't go to 4.5, 5, 6, 7 billion dollars. ये हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे चले जाएंगे। और हमारे से मांग क्या रहे हैं? हमारे से पॉलिसी फ्रेमवर्क मांग रहे हैं, हमारे से ये कह रहे हैं हमें रिटेंशन दे दें, हमारे से ये मांग रहे हैं कि हमें बाहर इन्वेस्ट करने की और बाहर मार्केटिंग करने की आप इजाज़त दे दें। ये सब हमारे हाथ में है, इसका IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए हमने IT में इस दफ़ा जो सेक्टोरल एलोकेशन रखी है और करंट एक्सपेंडिचर में एलोकेशन रखी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एलोकेशन रखी है कि ये हम हर तरह मदद कर सकें कि ये 5, 6, 7, 10, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा इसको हमने $25 बिलियन पे लेके जाना है और इंशाल्लाह हम लेकर जाएंगे। तो ये IT सेक्टर को सिर्फ मैं उसका जिक्र करना चाहता था। मैं वापस ज़राअत में आना चाहता हूँ। अब ये देखिए, ज़राअत में जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसे मैंने बात किया 6.3% पे ये ग्रो किया, उसकी वजह से जो बजट आया है उसमें हमने क्या किया, क्योंकि हमने ये एग्जेम्पशंस रिमूव करनी है और बतदरीज रिमूव करनी है।
because this is the right thing to do for the country. लेकिन हमने at this point in time जो खाद है, जो दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स, जो बीज हैं, उन पे हमने वो एग्जेम्पशन बरकरार रखी है ताकि ज़राअत के शोबे पे मिनिमल इम्पैक्ट आ सके. ये हुआ है एट द फेडरेशन लेवल. उसके अलावा हमने ये जो PSDP है, जो डेवलपमेंटल है ग्रोथ, उसमें 41 बिलियन का हमने ये जो है वो एलिमेंट रखा है. एंड बिफोर आई कम टू द चीफ मिनिस्टर साहबा एंड द डिस्कशन अराउंड द फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ इट, मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि जो हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमने चीन का दौरा किया, आम तौर पे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि हम पैसे मांगने की हमें आदत पड़ चुकी है. इस दफ़ा हम पैसे मांगने नहीं गए. वी हैव गॉन अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. वी हैव गॉन अबाउट कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं और जिनको हम यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ला सकते हैं, यहाँ से आके अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ लेकर आएँ और उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान से. और उसमें कई बड़े अच्छे ऑलरेडी मंसूबे चल रुके हैं. सर्विस लॉन्ग मार्च उसका बहुत ज़बरदस्त एक मंसूबा है, जो एक जॉइंट वेंचर है जहाँ ये ट्रक टायर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और मोस्ट ऑफ इट इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड टू द US. सो ये $100 मिलियन की तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. उस किस्म की हम बात करके आए हैं. लेकिन हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में गए, हम एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स में गए और वहाँ से जाके हमने उनको कहा है कि हम यहाँ से बच्चे और बच्चियाँ भेजेंगे टू गेट ट्रेंड इन योर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़. आप उनकी वर्टिकल फार्मिंग वहाँ हो रही है. उनके पास भी बहुत ज़मीन है, हमारे पास भी बहुत ज़मीन है. अभी जो शख्सियात मुझे मिल के गई हैं, माशाल्लाह दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन इंटरनल फार्मिंग. इसी तरह जो सीड टेक्नोलॉजी है, क्या वजह है कि हमारी यील्ड्स इज़ ऑन वन साइड और क्रॉस द बॉर्डर यील्ड्स आर ऑन द अदर साइड. इस सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी, तो इसमें अब हमारी फेडरल गवर्नमेंट से जितनी भी हमने एलोकेशन की है वो इसी वजह से की है कि इस तरह एक तो सक्सेस ट्रांसफ़र करवाएं, दूसरा सोलराइजेशन की तरफ लेकर जाएं, जो ट्यूबवेल्स हैं एक्सेट्रा. अब दो आखिरी बातें मैं करूंगा और उसके बाद आपके जो भी सवालात होंगे उनका मैं जवाब दूंगा. द अदर थिंग इज़ के जो प्राइम मिनिस्टर ये चीफ मिनिस्टर साहबा ने यहाँ पैकेज का ऐलान किया है, 60 अरब से ज़्यादा है ये. एंड आई थिंक शी इज़ डन ए फैंटास्टिक जॉब कि उन्होंने जो बिलासूद कर्ज़ों की बात की है किसानों के लिए, जो उन्होंने मैकेनाइजेशन की बात की है, जो ग्रीन ट्रैक्टर की उन्होंने बात की है, ये सारे वो मंसूबे हैं विच विल गिव ए रियल फिलिप टू द एग्रेरियन इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान. क्योंकि मैं खुद एक इदारे के साथ मुंसलिक रहा हूँ और वो HBL है. वहाँ हमने जो HBL ज़राई शुरू किया, वो शुरू ही इस चक्कर में हमने किया था कि जो छोटे फार्मर्स हैं, और मैं इसमें अभी आऊँगा क्योंकि मेरा खुद बैंकिंग इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, कि हम बैंकिंग इंडस्ट्री को कैसे इंसेंटिवाइज़ करें कि इसमें आप अपने वो मुल्क को, और जो हमारा गवर्नमेंट पेपर है उसमें तो पैसे डाल रहे हैं, वो जब हमारा फिस्कल इंडिसिप्लिन कम होगा तो उसमें वो पैसे उनको कम डालने चाहिए ताकि वी मूव टुवर्ड्स द रियल सेक्टर्स. लेकिन ये जो बात अब शुरू हुई है कि इन जो स्पेशली जो छोटे फार्मर्स हैं, पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के साथ मिलके और स्टेट बैंक के साथ मिलके मैं पिछले 2 महीने से इसमें मैं उनके साथ मैंने बतरीज बात ये की है कि हम डायरेक्टेड लेंडिंग की तरफ नहीं जाएंगे. डायरेक्टेड लेंडिंग इज़ द रॉन्ग थिंग टू डू. लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री को हमने इंसेंटिवाइज़ करना है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है, SME हो गया, IT हो गया, लेकिन मैं एग्रीकल्चर की सिर्फ बात करना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं जिनका 5 से 12.5 एकड़ तक की वो काश्तकारी करते हैं. उसमें जो हमने, और मैं बहुत मशकूर हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री का और स्टेट बैंक का कि उन्होंने ये बात की कि इसमें हम 15% की ग्रोथ लेकर आएंगे. इसी तरह जो इस्लामिक बैंक्स हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आइए ताकि जो इस्लामिक बैंकिंग भी है उसमें बतदरीज इसमें वो इजाफा करे, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स. और ये बैंकिंग इंडस्ट्री जो है बतदरीज अपनी ब्रांचेस को इस्लामिक ब्रांचेस बनाते जा रही है. तो बहुत ज़रूरी है कि उनका जो इस वक्त कंट्रीब्यूशन है to the agriculture financing is very, very important. The third thing and the last thing I want to mention is
EWR جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ ہے، کیونکہ چھوٹا کسان جو ہے وہ عام طور پہ اس کو جب اس کی فصل اگتی ہے یا بڑھتی ہے اس کو اپنے آڑتی کو ہر اونے پونے اس کو بیچنا پڑتا ہے۔ یہ اگر ویئر ہاؤسز آتے جائیں اور یہ ویئر ہاؤسز میں آ کے اپنی وہ فصل رکھتے جائیں اور اس کے بعد ان کی فائنینسنگ ہوتی جائے تو یہ ایک ایسا ایک ویلیو ہے جس کے بیسس وہ اپنی مرضی سے ان چیزوں کو آگے لے کر جا سکیں گے۔ سو آئی ایم ویری کلیئر کہ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان دیز ویئر ہاؤسز تاکہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ تو دیکھیے جی، زراعت جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے امپورٹنٹ لیور ہوگا آف گروتھ، کیونکہ میں آخری اس بات پہ ختم کروں گا، کیونکہ لوگ یہ ہمیشہ کہتے ہیں اینڈ ٹائم ول ٹیل کہ جب بھی IMF کا پروگرام ہوتا ہے اٹس آل اباؤٹ اسٹیبلائزیشن، اور ابھی بھی لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے 3.6% کیسے رکھ دیا۔ تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ایگریکلچر سیکٹر اینڈ دا IT سیکٹر دے ول لیڈ دا کنٹری، اور جو کچھ ہمارے ہو سکا انڈسٹری کو، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو، ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ that you entered. آپ نے کہا کہ جو ادارے جو ہیں وہ خسارے میں جا رہے ہیں ان کی ہم نگرانی کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ ان اداروں کو منافع بخش بنایا جا سکے؟ دیکھیے، جو منافع بخش بھی ہیں ان کو اور منافع مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو میں نے تو کچھ اداروں کا ذکر کیا ہے، ابھی اویس لغاری صاحب، کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیے گا ایز پاور منسٹر، رائٹ؟ تو ان دا فرسٹ انسٹنس وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر سیکٹر میں میرے بھائی، ہر سیکٹر میں دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے جو لیکیج ہے اس کو آپ لیکیج کہہ دیں، اس کو آپ چوری کہہ دیں، آپ اس کو تھیفٹ کر دیں، اس کو ہمیں روکنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایڈیشنل میجرز لینا ہے۔ تو میں نے آپ کو ابھی FBR کے سلسلے میں بتایا کہ یہ جو لیکیج ہے، جو تھیفٹ ہے، ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے، اور پھر ایڈیشنل میجرز ہم لیں۔ اسی طرح اگر آپ اویس لغاری صاحب سے بات کریں گے تو وہ جو کوآپریٹ بورڈز ہیں، جو ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز، ان کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سے پولیٹیکل اپوائنٹیز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بہت مشکل کام ہے میرے بھائی، بہت مشکل کام ہے یہ۔ گورنمنٹ نامینیز کو کم کیا جا رہا ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو لایا جا رہا ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی لوگ ہیں ان موسٹ آف دا کیسز جو ڈسکوز کے چیئر پرسن ہوں گے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا نا، فرض کریں کہ اس کارپوریٹ گورننس سے سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے اور ہمیں ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو نہ پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کنسیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ جتنا ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرتے جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا، اور حکومت سے ہم نکالتے جائیں، حکومت کا جو عمل دخل ہے ہم نکالتے جائیں۔ یہ میرا ایک ویو ہے، لیکن یہ جس طرح ہم گورننس کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اگر اس سے ادھر تک گل مک جائے تو پھر تو بڑی گل ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ جی بتائیے، اب بتائیے سر، پہلے ان کی بات سن لیں پھر آپ کی بات۔ جو حالیہ 100 دن کی جی سر، اس کے حوالے سے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بڑی پازیٹیو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بات کریں جو حالیہ جو بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تقریباً 10 سے 15 روپے فی یونٹ تک اضافہ ہو چکا ہے، تو کہاں ریلیف تو ہمیں نظر نہیں آ رہا عام عوام کو؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ عام عوام کو ریلیف آیا کہ نہیں۔ جو پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ جو قیمتیں کم ہوئی ہیں میرے بھائی، اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دو۔ ہاں، تھوڑا سا تو ذکر کرو نا اس کا، تاکہ اس کو ہم بیلنس طریقے سے آگے لے کر چلے۔ کیسے کریں؟ آپ تو بیلنس کر دیتے ہیں۔ ہاں نہیں، وہ ٹھیک ہے، 3 روپے ادھر سے کم ہوتا ہے، 10 روپے ادھر بڑھ جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ابھی ہم نے انڈسٹری کو کتنی بڑی ریلیف دی ہے۔ ان کی جو 300 بلین کی جو سبسڈی تھی وہ کم کی ہے نا۔ تو دیکھیں، یہ آپ کو ایک چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے، اللہ کرے اور انشاءاللہ کہ ہمیں فسکل سپیس مل جائے، کیونکہ دیکھیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں میرے بھائی فیڈرل گورنمنٹ کیسے شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے 30% ٹیکس ریونیوز اس سال بڑھائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ اگلے سال 40% کی بات کر رہے ہیں، اس سال 30% بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں نا۔ تو اس لیے پھر 40% ان دیٹ مناسبت آپ کی اپنی ویوز ہو سکتے ہیں کہ بڑھ سکیں گے نہیں بڑھ سکیں گے،
वो अपनी बात दुरुस्त है, इट इज़ अ लार्ज डेल्टा, लेकिन जब तक ये बढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारा टैक्स टू GDP 13% तक नहीं जाएगा, तो वो एक पंजाबी दी गल हैगी है, मैं लवां कित्थों ते मैं दवां कित्थों, मैं तुहाडी ज़बान 'च गल कर रहा है, राइट। तो इसलिए हमें वो फिस्कल स्पेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज एट द फेडरल लेवल जब हमारी नेट रिसीट्स होती हैं डेट सर्विसिंग के बाद, हर चीज़ जो हम कर रहे हैं, हर चीज़ जो हम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो रिलीफ की बात आप कर रहे हैं, वो हम उधार लेके कर रहे हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है ना मेरे भाई, ये सस्टेनेबल नहीं है। वी कैन कंटिन्यू टू किक दिस कैन डाउन द रोड कि जी ए साल तो चला दो, फिर अगली साल देखिया जाएगा। तो ये बड़ी तल्ख बातें हैं, और ये बातें भी ऐसी हैं कि जी आपने इसको ये कर दिया, आपने वैसे ही कर दिया, आपने वो कर दिया। और मुझे बात समझ मुझे आती है, मैं खुद सैलरीड क्लास के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है, राइट। इस वक्त ठीक है हमने कैबिनेट में कह दिया कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन वो तो एक सिंबॉलिक जेस्चर है ना। तो मैं तो खुद मान रहा हूँ कि जब तक हम ये मिनिस्ट्रीज़ नहीं बंद करेंगे, जब तक ये SOEs जो खसारे वाले हैं, आपने जिक्र किया कि जी प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन मेरे भाई पाकिस्तान खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, टैक्स से ही सारा निज़ाम चलता है। बजट तकरीर में कुछ उसूल और ज़वाबित की बात की। GDP का इन्हिसार टैक्स नेट पर है, खैरात से इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। FBR में बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं, अखराजात में कमी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। निज़ाम को मुतवाज़न करके ही मुल्क को चलाया जा सकता है। एयरपोर्ट की आउटसोर्स कर रहे हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। टैक्स छूट को बतदरीज कम कर रहे हैं। कमालिया में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, टैक्स से ही सारा निज़ाम चलता है। बजट तकरीर में कुछ उसूल और ज़वाबित की बात की। GDP का इन्हिसार टैक्स नेट पर है, टैक्स छूट को बतदरीज कम कर रहे हैं, और खैरात से इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। FBR में बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं, अखराजात में कमी के लिए इक़दाम जारी हैं। निज़ाम को मुतवाज़न करके ही मुल्क को चलाया जा सकता है। एयरपोर्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। ज़रई शोबे का मुल्क की मईशत में बड़ा अहम किरदार है, टैक्स छूट को बतदरीज कम कर रहे हैं। कमालिया से ये बराह रास्त मनाजिर जहाँ वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। एग्रीकल्चर है हमारी, एग्रीकल्चर मकई का आप देख लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।